Hello, my dear student of Standard 10th, and today we will continue our chapter number 15, Economic Development, part 2. Well, I already covered part 1, and in this session we are going to cover part 2. It's a very small and sweet part, and the third part is going to be the bigger one, and of course, the third part we are again going to discuss all the key points of the chapter. But before we start, let us see today's topic, that is economic and non-economic activity. So friends, we are reading economic and non-economic activity from the Indian market point of view. So first is the economic activity. See, we all do many activity, and but some activities are associated with the money. Now those activity are called economic activity. Say for example, I love to play cricket. Now if I play cricket, I am playing cricket for my fun, okay, and that is a non-economic activity. By playing that cricket, I am getting mental relax, but I am not earning any money out of it. While Virat Kohli is the cricketer and he is playing cricket and he is getting money out of it, okay. So you have to remember. See, here it is written economic activity means earning or spending money. So you have to remember money element for the economic activity. And here examples are given. Farmer, what used to they do? They are producing all the farm products to earning money only. An artisan draw a paint for selling purpose. Businessman doing business for the profit motive, of course is getting money. And they had including teachers also. Teachers usually teaching in the school, so they are getting salary. Even some of the teachers are doing coaching classes also. They are taking private tuitions, so they are earning money out of it. So these are the economic activity. Okay, now we are going to the second topic, that is non-economic activity. Now, activity that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly is called non-economic activity. See, हमारा जो इंटेंशन होता है पैसे अर्न करने का नहीं होता है, एंड डेट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर अपने बच्चे को जो मतलब पालती है, तो वो हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे. एंड सी इन द लेटर वन एग्जाम्पल इज गिवन like a teacher. Now it might be possible that some of the teachers are helping the poor people. They are freely providing their service to the those students who are not capable to paying the higher amount of fees. So that activity covers under the non-economic activity. Okay, some of the social workers also. In the corona times हम लोगों ने देखा था ना कि कुछ लोग गरीबों को खाना बांट रहे हैं. ओके, सो वो लोग जो मतलब हेल्प कर रहे हैं, डेट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो एक्टिविटी इकोनॉमिक होती है या नॉन इकोनॉमिक होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज देयर एम इज नॉट टू अर्न मनी. कुछ लोग शौक के लिए, कुछ लोग अपने सेटिस्फेक्शन के, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं एक्टिविटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. Here there are three categories you are supposed to remember: primary sector, secondary sector, and third one is the service sector. Now all these three activity are combined, and इससे क्या होता है, हमारे देश की नेशनल इनकम बनती है, GDP. So first let us talk about the primary sector, where agriculture is included, and all the agriculture related activity are also included in that. In it कैटल रियरिंग इंक्लूडेड इन इट. कैटल रियरिंग मीन्स हम लोग जो एनिमल्स को पालते हैं, ओके, काउ, बफेलो एंड वॉट एवर फॉर मिल्क. एंड कैटल ब्रीडिंग, कुछ लोग ब्रीड करवाते हैं, डॉग्स रखते हैं, है ना. फिशिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड. पोल्ट्री फार्म, मुर्गी होती है ना, एंड ऑल डेट. नाउ कलेक्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जो हमको नेचर में से डायरेक्ट मिलता है, ये सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होता है. Now second one is the secondary. See, it is very simple. Second number पे secondary. Okay, just you have to put ARY behind the second. So secondary sector में usually क्या क्या cover होता है? Well, we are covering factories, industries, electricity, gas, water supply, and all such kind of things are covered in it, where we can produce
small pin to big machine, gigantic machines written over here. And the third one is the different types of services, like trade, communication, airway, waterway, education, health, banking, insurance, tourism, entertainment. All these are covered under the service sector. Friends, let me share some of the data with you. India, if we look from the Indian point of view, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है डेट इज़ कॉन्ट्रीब्यूट 26%, बट जो सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है दैट इज़ द सर्विस सेक्टर एंड इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 60%. चाइना के केस में क्या है, उनका सेकेंडरी सेक्टर बहुत पावरफुल है. चाइना को आज हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सामान वहाँ से प्रोड्यूस होता है. ओके, इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना का सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द लास्ट पैराग्राफ, ऑल द इनिशियल कंट्री जब वो व्हेन दे आर डेवलपिंग, अब तो चलो डेवलप हो गए, न्यूजीलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं. इमेजिन करो आज से कुछ साल पहले न्यूजीलैंड भी एक पुअर कंट्री रहा होगा, वो डेवलपिंग कंट्री रहा होगा. एट द टाइम उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती थी, बट स्लोली लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं एंड लास्ट में वो कम हो जाता है. सो when I am the student, usually 70% of the people are involved in the agriculture, but nowadays 60% हो गया. It might be possible after 10 years 50% हो जाए. So ये क्या शो कर रहा है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन रहा है धीरे धीरे, ऑफकोर्स बन ही जाएगा एक दिन. Now the next topic is the factor of production, and again you have to remember only 4 points: land, capital, labor and entrepreneur. उसको एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ेंगे, entrepreneur. एंड लिसन, इन चारों चीज़ों के साथ ही हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं. सपोज़ मुझे एक टमाटो सॉस की एक फैक्ट्री बिल्ड करनी है. अब टमाटो सॉस की फैक्ट्री बनानी है तो पहले मुझे क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट लैंड. ओके, फ्रॉम वेयर आई एम, यहाँ पे मैं अपना प्लांट लगाऊंगा. कैपिटल मीन्स ऑल द इन्वेस्टमेंट, मनी, मशीनरी, उसमें सब इंक्लूड हो जाता है. लेबर, अब फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए जो लोग होंगे डेट इज़ कम अंडर द लेबर. एंड लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ऊपर के तीनों फैक्टर को कंबाइन करके जो इंसान काम करेगा डेट इज़ कम अंडर द एंटरप्रेन्योर. लेट अस सी ईच पॉइंट वन बाय वन. सो अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पे लैंड होता है, एंड यहाँ पे हम लोग अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विच आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये सब हम लोग ज़मीन में से जो भी हमको चीज़ें मिलती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पहले हमको ज़मीन चाहिए. कैपिटल अगेन इंस्ट्रूमेंट, टूल्स एंड हाउस, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. एसेट्स यानी हमारी जो मिलकत होती है, और इन्वेस्टमेंट हम लोग जहाँ पे पैसा मतलब अपना लगाते हैं. से फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहेगा कि आपको ये कंपनी में आप पैसे लगा दो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे हम लोग एफडी करते हैं, लाइक डेट. इट्स डिपेंड कि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप लोग बैंक में एफडी करवा रहे हो. लेबर, वेल लेबर मीन्स हम लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं वो लेबर में इंक्लूड नहीं होता है, हमारा मेंटल वर्क भी. ओके, क्योंकि हमको बहुत सारा सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है. पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. वर्क ऑफ अ फार्म लेबर, तो खेतों में जो काम करते हैं वो फार्म लेबर हो गए. वर्कर्स ऑफकोर्स, टीचर्स, हम टीचरों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा एंड हमको भी वर्कर्स की लेबर्स की कैटेगरी में डाल दिया. हाँ सही है, मजदूरी तो हम भी करते ही हैं. नॉट अस, डॉक्टर्स को भी इन लोगों ने इंक्लूड किया है, एंड इवन आर्टिसन, ये सब को हम क्या कहेंगे, लेबर. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, ऊपर के तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके जब कोई इंडिविजुअल इंसान इन सबको जब कोऑर्डिनेट करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर. वो कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक भी हो सकता है एंड ऑल डेट. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सी, ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है एंड हमको उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. से फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में भी 100 रुपीज़ है, बट मुझे पिज़्ज़ा खाने का भी मन हो रहा है. मैं ये सोचता हूँ कि आज डोसा खाने जाऊँ, नहीं इडली भी खाने का मन हो रहा है, अरे हाँ बहुत दिन से फ्रेंच फ्राइज़ भी नहीं खाई. तो 100 रुपये में मैं इतनी सारी चीज़ें तो नहीं खा सकता. देखो मैं कितना भूखा हूँ, जन्मों से भूखा हूँ, लॉकडाउन में तो कुछ खाया ही नहीं है. बट हाँ 100 रुपीज़ में मैं कुछ एक ही डिज़ायर फुलफ़िल कर सकता हूँ. सो
अब मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी दे दूँगा कि कौन सी चीज़ पहले खानी चाहिए। बट मैंने ये डिसाइड किया कि चलो नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, तो उसको साइड में रखते हैं। बट हाँ, मेरे फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, उसको मुझे गिफ्ट देना है, तो वो हाई प्रायोरिटी पे। क्यों? उसको अगर मैंने गिफ्ट नहीं दिया तो उसको बुरा लग सकता है। सो मैंने क्या किया, अपने सारे मतलब जो मतलब खाने की इच्छाएं थी उसको साइड में कर दिया, एंड जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ें थी उसको मैंने दे दिया। मीन्स उसको गिफ्ट परचेस करके दे दिया। 100 रुपीज़ के बहुत सारे गिफ्ट आ जाते हैं, इफ़ यू थोड़ा ढूंढना पड़ता है मार्केट में कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। वेल, सो हियर इज आवर फर्स्ट पॉइंट, डेट अनलिमिटेड वांट्स। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है ना। मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी खानी है, मुझे बर्गर्स भी खाने हैं, मुझे डोसा भी खाना है। मतलब ये जीवन बहुत लपलपाती है, क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है। एनी हाउ, सो वांट्स बहुत सारी है। हमारी कंट्री को भी डेवलपमेंट करना है, हमारी कंट्री को यहाँ पे भी आगे निकलना है, वहाँ पे भी आगे निकलना है, लेकिन पैसे कम है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग इसरो का एग्जांपल लेते हैं। इसरो को अपने स्पेसशिप से ना मार्स पे भी भेजने हैं, चांद पे भी भेजने हैं, यूरानस से भी भेजने हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पैसे बहुत कम प्रोवाइड करती है। सो वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज कम है। ओके, सो सिलेक्शन करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। अब हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना, कि फ्रेंच फ्राइज बाद में खा सकते हैं। ओके, इसरो भी ये प्लान कर सकता है कि यूरेनस पे हम लोग बाद में अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे। राइट नाउ मार्स पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो हमेशा अपनी जो नीड्स होती है उसको प्रायोरिटी दो। ओके, थर्ड पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। हमारे पास मीन्स मेरे पास वो 100 रुपीज़ का ही नोट है, क्या क्या खाऊंगा मैं। ओके, सो हमारे कंट्री के पास भी जो रिसोर्सेज बहुत कम है, तो उसको हमको बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज करना पड़ेगा। जुडिशियसली मतलब ध्यान से, सोच समझ के। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। कई बार हम लोग उसका अल्टरनेटिव भी ढूंढ लेते हैं। एंड से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में आज की डेट में वीट ख़त्म हो गया, तो क्या हम लोग खाना छोड़ देंगे? नहीं, उसका अल्टरनेटिव हम लोग राइस भी खा सकते हैं। ओके, अगर हमारे घर में चाय ख़त्म हो गई तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? हम लोग कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, तो हम लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। राइट नाउ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑटोमोबाइल्स मीन्स कार वाली जो इंडस्ट्री होती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। सो व्हाट दे आर प्लानिंग, दे आर फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, सो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 15। बट जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम लोग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी क्या होता है वो समझेंगे। एंड ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू रीड आउट ऑल द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। So stay tuned and wait for my third part. And with this I am ending my session. Thank you very much. Have a nice day. And remember, कोरोना टाइम चल रहा है। 200 का मास्क का 500 का हो गया है। टेक केयर एंड मास्क लगा के घुमा करो।